محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 16واں باب۔ اے اشراف قریش، میرے اس کلمے کو مان لو تو عرب و عجم سب تمہارے زیر نگیں ہوں گے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ یہ مکہ کے سردار اور سربر آوردہ لوگ تھے جو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کے گھر جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند نوجوان بھی تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ تھا۔ ولید وہی شخص تھا جس نے کعبے کی عمارت میں توسیع کی تجویز رکھی تھی اور قریش نے خانہ خدا کو از سر نو تعمیر کیا تھا۔ اسی موقع پر حجر اسود کو رکھنے پر قریش کے سرداروں میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس کا فیصلہ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ واقعہ رسول اللہ کی بعثت سے کچھ ہی عرصے پہلے پیش آیا تھا۔ ولید مکہ کے سرداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ غلاموں اور کنیزوں کی تجارت میں اس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے پاس اونٹوں اور بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ وہ اپنا روپیہ سود در سود پر قرض دیتا تھا اور مکہ کا متمول ترین نہایت مغرور اور چالاک آدمی تھا۔ جب مکہ میں اسلام کی تحریک کا آغاز ہوا تو رسول اللہ کی مخالفت کی مہم میں وہ سب سے آگے تھا۔ اسی کی تجویز پر کعبے کی زیارت کو آنے والے قبائل میں رسول اللہ کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی ایک زبردست مہم چلائی گئی تھی۔ جب قریش ایک دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گفتگو کے لیے گئے اور ان کو دھمکیاں دے کر چاہا کہ وہ حضور کی سرپرستی اور حفاظت سے دستبردار ہو جائیں، آخر ان کو اس مقصد میں ناکامی ہوئی تو ولید نے اب ایک اور تجویز رکھی۔ قبائلی زندگی میں صحت مند نوجوانوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ جس کے گھر زیادہ تعداد میں اولاد نرینہ ہوتی تھی اسے خوش نصیب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قبائلی لڑائیوں میں جنگجو اور بہادر نوجوان ہی قبیلے کے محافظ ہوتے تھے۔ ان کے مقابلے میں لڑکیوں کو بے فائدہ اور حقیر سمجھا جاتا تھا کہ وہ جنگ و جدال میں کسی کام نہ آتی تھیں، بلکہ الٹا ان کی حفاظت کا بوجھ قبیلے پر پڑ جاتا تھا۔ جس کے گھر لڑکیاں زیادہ ہوتی تھیں وہ آدمی سب کے سامنے شرمسار رہتا تھا۔ جب لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہونے لگتی تو وہ نومولود بچیوں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ ولید نے لوگوں سے کہا کہ ابو طالب شاید اسی خیال سے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنا نہیں چاہتے کہ ان کے گھرانے میں ایک نوجوان کی کمی ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ میرا لڑکا عمارہ ہے، میں اسے سب کی بھلائی کے لیے پیش کرتا ہوں
आओ हम इसे लेकर अबू तालिब के पास जाएं और उनसे कहें कि तुम अम्मारा को ले लो और अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, शायद वो राजी हो जाएं। सब ने इस तजवीज को पसंद किया और वो अम्मारा को लिए हुए अबू तालिब के पास पहुंचे। अम्मारा मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, बुलंद कामत, सेहतमंद और शमशीर जनी और शहसवारी में चाको चौबंद। किसी भी कबीले के सामने उसे पेश किया जाता तो वो बखुशी से अपना बना लेने के लिए आमादा हो जाता। बुजुर्ग अबू तालिब ने उनकी बात सुनी तो तंदो तेज नजरों से उनको देखा और कहा, कसम खुदा की, तुम लोग तो एक शर्मनाक कारोबार करने आए हो। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे बेटे को नाजो नाम से परवरिश करूं और अपने फर्जंद को तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम उसके खून से हाथ रंगो। वाह, ये भी खूब सौदा है। ऐसी बेशर्मी और कम हौसलगी भी कहीं देखने में आई है। जाओ, ये हरगिज नहीं होने का। अबू तालिब के इनकार पर मुतआम ने, जो कुरैश में उम्र रसीदा आदमी था और अबू तालिब का देरीना दोस्त था, कहने लगा, क्यों नहीं होने का? फिर उसने बिगड़ कर कहा, अबू तालिब, तुमने मफाहमत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी भी तजवीज पर तुम तैयार नहीं होते और इधर तुम्हारे भतीजे ने पूरे शहर को बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। वो हमारे खानदानों में जुदाई डाल रहा है। वो तो हमारे फर्जंदों को हमसे जुदा कर दे और तुम अपने फर्जंद को छोड़ने पर तैयार नहीं हो। बस अबू तालिब, इससे ज्यादा हमको और खुद को मुसीबत में न डालो। हमारी ये पेशकश मुनसिफाना और माकूल है। तुम्हें एक नौजवान मिल जाएगा और हम एक आफत से छूट जाएंगे। बनु हाशिम के गयूर सरदार अबू तालिब को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी सख्त लहजे में मुताम की बात का जवाब दिया, तुम लोग तो निहायत बेगैरत हो। तुम्हारी ये बात आदिलाना नहीं, सितमगराना और वहशियाना है। तुम मुझे धमकियां देते हो कि अगर मैं तुम्हारी इस बकवास को कबूल ना करूं तो तुम सब मिलकर मुझसे लड़ोगे और तलवारें खींच लोगे। अच्छा, तो जाओ, जो तुम कर सकते हो कर गुजरो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे हाथ मेरे भतीजे तक नहीं पहुंच सकते। वलीद और उसके साथी अम्मारा का हाथ थाम कर उठ खड़े हुए और आपस में बुड़बुड़ाते और पेचोताप खाते हुए निकल गए। अबू तालिब खुश बयां शायर थे। उन्होंने इस वाक़े पर ये अशआर कहे थे, मुतआम और वलीद और इन दूसरों से जाकर कह दो कि काश तुम हमारे अजीजो अकारिब ना होते। तुम्हारी बजाय एक ऊंट ही बेहतर होता। उसका कफ से भरा हुआ मुंह तुम्हारी सुखन साजी से ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपने फर्जंद को तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। तुम तो ऐसी अहमकाना बातें कहते हो कि तुमसे तो एक बेवकूफ भेड़ बेहतर है। तुम तो ऐसे झगड़े की बात लेकर आए हो कि हमारे तुम्हारे दरमियान खत्म न होने वाली अदावत पड़ जाए। सरदारान कुरैश का यह तीसरा वफ्द था जो अबू तालिब के पास से नाकाम लौटा था। उनकी इस नाकामी के कुछ ही अरसे बाद हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो जैसी बाअसर और ताकतवर हस्तियां
दीन हक की इस तहरीक में शामिल हो गईं। इन दोनों के इस्लाम कबूल कर लेने का एक असर यह हुआ कि मुनकरीन हक जो अबू तालिब से मायूस होकर जंगो जिदाल का दरवाजा खोलना चाहते थे, अपने इरादों से बाज आ गए। इन दोनों हजरात के इस्लाम कबूल कर लेने से मुखालिफीन हक की सफ़ों में ऐसा रखना पड़ा था कि उनको किसी जारहाना इक़दाम की बजाय अपनी मुदाफ़अत की फिक्र पड़ गई। यही वो मौका था कि सरदारान कुरैश ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसालहत और समझौते की बात करना चाहिए। चुनाचे वो अबू तालिब की बीमारी की हालत में उनके घर पहुंचे और ये तजवीज़ पेश की कि जो कुछ सूरत हाल है इसे तुम जानते हो, अपने भतीजे को बुलवाइए, उसके बारे में हमसे अहद लीजिए और हमारे बारे में उसका अहद दिलवाइए कि वो हमसे बाज रहे, हम उससे बाज रहें। वो हमसे और हमारे मजहब से वास्ता ना रखे, हम उससे और उसके मजहब से वास्ता नहीं रखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महफिल में बुलवाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी बात सुनी। उसके बाद वाज़ेह और पुरयकीन लहजे में इरशाद फरमाया, ए अशराफ कुरैश, मेरे इस कलमे को मान लो तो फिर अरब व अजम सब तुम्हारे जेर नगी होंगे। इस पर अबू जहल ने तनक कर कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे बाप की कसम, एक क्यों 10 कलमे चलेंगे। एक और शख्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये शख्स तो खुदा की कसम तुम्हारी मर्जी की कोई बात भी मानने को तैयार नहीं। इस गुफ्तगू के बाद कुरैश का ये वफ्द भी मायूस चला गया। हरम में लोग इस गुफ्तगू का नतीजा सुनने के लिए बेकरार थे। जब उन्हें ये सारी रुदाद मालूम हुई तो वो फिक्रा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सारे शहर में फैल गया। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, कोई तंज कर रहा था, मगर ऐसे भी लोग थे जो इस यकीनो एतमाद पर हैरत ज़दा थे कि मुसलमान थोड़ी सी तादाद में हैं, कमज़ोर हैं, किसी से कोई सुलूक कर सकते हैं, न किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, मगर उनके रहनुमा का ये हाल है कि वो सरदारान कुरैश को, जो मालदार भी हैं, ताकतवर और साहिब इक़्तिदार भी, अरब व अजम की सियादत की जमानत दे रहा है। तो क्या वाकई इस्लाम के कलमे में ये कुव्वत है कि वो ईरान और रूम, यमन और हबश को नीचा दिखा दे? उनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, मगर इन्हीं महफिलों में जहां रसूल अल्लाह के इस इरशाद पर तबसरे हो रहे थे, एक नौजवान ने अपने साथियों से कहा, तुम वहां होते और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ये फिक्रा कहते हुए अपने कानों से सुनते तो तुमको शक ना होता कि वो गलत कह रहे हैं। ये मक्का का सबसे ज्यादा खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था। इसका नाम अम्मारा था और वो मक्का के मुतव्वल तरीन सरदार वलीद बिन मुगीरा का बेटा था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें
تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا